زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کی قدرت کو دیکھنے کے لیے جب بھی انسان نظر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی زبان پر کلمہ شکر الحمدللہ جاری ہو جاتا ہے۔ زندگی کو اللہ پاک نے دنیا میں بڑی جہتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں مختلف اقوام ہیں، ان کا اپنا اپنا کلچر، روایات اور زندگی گزارنے کا انداز ہے۔ جسے آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل کا پروگرام زندگی پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم اس لیے کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو اس کائنات، اس پلینٹ ارتھ میں رکھا ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف کمیونٹیز کی، مختلف قبائل کی زندگی کے مختلف انداز ہیں۔ انہی اندازوں میں سے ایک اہم انداز بلوچستان میں بسنے والی دیہاتی زندگی کا بھی ہے۔ بلوچستان میں بسنے والے دیہات کے لوگ کس طریقے سے اپنا وقت گزارتے ہیں، بجلی کے بغیر کس طریقے سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے، اور جو ان کی نیڈ ہے، جو ان کی ضرورت ہے، اسے وہ کیسے پورا کرتے ہیں، اس پر اور بہت سارے الحمدللہ رب العالمین دیگر مدنی پھولوں پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام زندگی اللہ کی رحمت سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا ٹریول، ہمارا جرنی انشاءاللہ الکریم پہلا ڈیسٹینیشن ہمارا اوستا محمد تک ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آگے ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، اور مدنی چینل کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ہم مختلف لوگوں سے ملاقات کریں گے، ان کا لائف سٹائل بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو آئیے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ زندگی 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 جب بھی سفر ہو تو سفر کی دعا ضرور پڑھیں۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، کہ جب بھی سفر ہو تو ایک اور سفر کو بھی یاد کیا جائے۔ جس طرح آج ہمارا یہاں سے بلوچستان کا سفر ہو رہا ہے، ایسے ہی ایک سفر ہمارا قبر کی طرف بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زندگی 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 بلوچستان کی پسماندہ دیہاتی زندگی دیکھنے کے لیے ضلع اوستا محمد کی طرف سفر شروع ہوا۔ رات ہو چکی تھی اور ہم حیدرآباد کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ٹریول ہمارا جاری ہے، نماز کے لیے یہاں پر رکے ہیں، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ سفر ہو، حضر ہو، گھر پر ہو، کہیں پر ہو، نماز کی پابندی لازمی ہے۔ زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ رستے میں آنے والے سنگ میل ہمیں حیدرآباد کا فاصلہ بتا رہے تھے۔ اس سے ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ زندگی میں آنے والی تبدیلیاں جیسے سفید بال، نظر کی کمزوری، صحت کی خرابی سب بتا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا سے جانے کا وقت آنے والا ہے۔ آخرت کی تیاری کی جائے۔ یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، تیری رضا والی مل جائے زندگی زندگی زندگی۔ حیدرآباد سے مبلغ دعوت اسلامی حاجی ناصر اتاری ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک مقام پر ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا جب بھی کھائیں، کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیں، کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ہم بھی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کراچی کے رہنے والے کھانا کھائیں اور چائے نہ پئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد ہم حیدرآباد سے مزید آگے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ الحمدللہ ہم کھانا کھا چکے ہیں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طعامن، جس نے کھانا کھایا اور کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کھانا کھائیں حاجی ناصر، اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ رب العالمین، امیر اہل سنت کے آستانے پر حاجی ناصر آپ نے بھی کھانا کھایا ہوگا، تو الحمدللہ امیر اہل سنت بھی ہر کھانے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اللہ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں۔ زندگی 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 انشاءاللہ الکریم سکھر پہنچیں گے اور وہاں رات کو سٹے کریں گے، اور پھر آگے ہمارا سفر سکھر سے آگے صبح کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ باب الاسلام سندھ کا شہر ہے مٹیاری، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، سندھ کی دھرتی کے بے تاج بادشاہ، صوفی شاعر، پیغام محبت عطا فرمانے والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا راستہ دکھانے والے، اپنی شاعری کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ان کو اپنانے کا درس اور سبق دے کر انسانیت کی فلاح و بہبود کا پیغام عطا فرمانے والے، اللہ اکبر، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی اس مبارک سرزمین مٹیاری سے ابھی ہم جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے حاجی ناصر، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کوئی بات بتائیں آپ۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عقیدت مندوں کو کم سونے، کم کھانے، کم بولنے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور خود غرضی سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمیں یہی چیزیں دے رہا ہے جو ہمارے اسلاف ہمیں دیا کرتے تھے، کہ نیکی کی دعوت دینا، کم بولنا، سادہ لباس پہننا، خود غرضی سے بچنا، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کا اس دور میں مدنی ماحول عطا فرما رہا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جوڑے رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں حاجی ناصر، کفل مدینہ ہے، پیٹ کا کفل مدینہ کیا مطلب ہے؟ کم کھانا، کم کھانا، ٹھیک ہے جی۔ زبان کا کفل مدینہ ہے، کیا مطلب ہے؟ کم کم بولنا، بولنا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ دیکھیں ایسے ہی بندہ سویا ہے تو سوتا ہی رہے بھائی، بس جسے یہ بولے کہ مجھے کسی نے کہا کہ میں تو 18 گھنٹے تک سو سکتا ہوں، میں تو کارڈ پکڑ لی کے پہلے، اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے۔ تو کرنے والا کام کریں، اپنی زندگی ہیلدی ایکٹیویٹی میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کے محبوب کی یاد میں گزاریں، غفلت سے بچائیں اپنے آپ کو، یہی اولیاء کا پیغام ہے۔ مٹیاری سے ہم گزر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سندھ کے بے تاج بادشاہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ زندگی زندگی۔ سکھر پہنچ گئے اور رات کا آخری پہر چل رہا تھا، مگر گرمی اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلا رہی تھی۔ سکھر ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بیراج روڈ سکھر پر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ قائم ہے۔ یہاں پر جامع المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، اور زبردست ماشاءاللہ مسجد بھی ہے۔ تو یہ جگہ پہلے جو ہے یہ سینما ہوا کرتی تھی، یہاں پر اللہ رسول کی نافرمانی والا کام ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال دعوت اسلامی نے اس جگہ کو خرید کر کے مسجد بھی بنائی ہے، جامع المدینہ بھی بنایا ہے، اور مدرسہ المدینہ بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کرنے والا اور اچھے کاموں کے اندر حصہ لینے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ زندگی کچھ دیر فیضان مدینہ سکھر رکے، پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد اوستا محمد کی جانب روانہ ہو گئے۔ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن۔ سکھر سے نکلے تو دن کی روشنی پھیل رہی تھی۔ سکھر بیراج سے نکلنے والی نہریں جو سندھ اور بلوچستان کو سیراب کرتی ہیں رستے میں دکھائی دے رہی تھیں۔ نہروں میں چلتا ہوا پانی
زبان حال سے بتا رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے نہروں میں چلا رہا ہے اور پھر میرے ذریعے مردہ زمین کو آباد کر کے وہاں کھیت اور کھلیان اگا رہا ہے، وہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی۔ سکھر سے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم اوستا محمد پہنچے۔ یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، تیری رضا والی مل جائے زندگی۔ طویل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو چکی تھی، لہذا کچھ دیر آرام کیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں کے سردار صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، لہذا ایصال ثواب اور تعزیت کے لیے ان سے ملاقات کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام زندگی کی ریکارڈنگ کے حوالے سے ہمارا ٹریول جاری ہے، اور یہاں پر ابھی ہم اوستا محمد میں پہنچے ہیں۔ بلوچستان کا ایک بڑا پیارا سا علاقہ ہے اوستا محمد، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علاقے کو زراعت سے اور فصلوں سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ تو ہم یہاں پر الحمدللہ پہنچے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں سردار صاحب کے بھائی جان جو ہیں، ان کا جنگ دوست مرحوم، ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے۔ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے ہم سارے اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، تیری رضا والی مل جائے زندگی۔ زندگی 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک طویل سفر کاٹنے کے بعد اوستا محمد کے مضافات میں گوٹھ حاجی اللہ ڈنوں میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ نام ہے جی، گوٹھ حاجی اللہ ڈنوں میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ مسجد شریف ہے، بڑی شاندار جو ہے وہ عالی شان مسجد ہے۔ یہاں پر ہم نے الحمدللہ عصر کی جو ہے وہ نماز ادا کی ہے، اور اس گوٹھ کے جو سردار ہیں جناب حاجی سردار یوسف صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی پیاری شخصیت ہے، اور اللہ کی رحمت سے حج کی ہماری ایک یوں بولیے کہ ایک دوستی بھی ہے۔ حج کے سفر میں، حج 2023 میں الحمدللہ ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اور آپ دیکھیے یہاں پر یہ بلوچستان ہے، تو یہاں پر ایک سسٹم ہے کہ آپ مہمان ہیں تو وہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے، چارپائیاں باقاعدہ جناب بچھی ہوئی ہیں۔ آئیں سردار صاحب تشریف لائیں، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، ادھر 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 آئیں آپ اللہ برکت دے آپ کو۔ آپ دیکھیں کہ سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی یہ ایک رواج ہے کہ جو مہمان ہوتا ہے اس کو پائنتی کی جانب جو ہے وہ نہیں بٹھاتے، ٹھیک ہے جی؟ تو مہمان کو عزت دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اکرم الضیوف، اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ اکرام کرو، احترام کرو۔ ابھی ہم اوستا محمد ضلع کے اندر ہیں الحمدللہ، اور آج یہاں پر 47 درجہ حرارت تھا، 47 ڈگری سینٹی گریڈ۔ میں نے یہاں کے ایک رہنے والے اسلام بھائی سے پوچھا کہ موسم کی سختی ہے یہاں پر، گرمی ہے، تو یہ صحیح ہے یا کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بہت اچھی ہے، یہ موسم کی سختی گرمی ہے بہت اچھی ہے، تو یہ دھان کی فصل کے لیے بھی، چاول کی فصل کے لیے بھی اس کی ضرورت تو بہرحال ہے، پانی بھی چاہیے اور ایک ہیٹ بھی چاہیے، تو دونوں موجود ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ کریم نے یہ اوستا محمد کی جو پٹی ہے اس کو چاول کی فصل کے اعتبار سے بہت مالا مال فرما رکھا ہے۔ کم از کم کتنی رائس ملز ہیں یہاں پر اوستا محمد میں؟ تقریباً 100 سے زیادہ رائس ملے یہاں پہ اوستا محمد میں۔ ماشاءاللہ الکریم، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وہ گوٹھ جہاں ہم نے جانا ہے اور آپ کو وہاں کا نظام دکھانا ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ زندگی 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 زندگی
कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। कोट के अंदर मकान कच्चे थे, कच्चे मकानों और बारिश की मुठभेड़ में बिलाखिर मकानों का ही नुकसान हुआ। कुछ की छतें गिर गईं और कुछ की दीवारें गिरी हुई थीं जो तबाही का मंजर आज भी पेश कर रही थीं। तो ये कैसे यहाँ गुजारा करते हैं लोग? ये देख रहे हैं इसी तरह बेचारे, इनको तो छत भी नहीं है इतने, तो पानी जब बारिश आती होगी तो फिर तो बस ऐसे ही बैठ जाते हैं बेचारे खुले आसमान के तले। मैंने आपको सच बात बताऊं, मैंने नियत की थी कि हम जहाँ जाएंगे ना तो वहाँ मैं एक रात जो है ना वहाँ रहूँगा, और सच बात ये है कि यहाँ पर रहने की हिम्मत मैं अभी करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। यानी आप इधर देखें, ज़रा घरों की सूरत हाल देखें, कोई छत भी नहीं है इनके तो। अल्लाह अकबर। तो ये ऐसे ही रहता है? अच्छा, ये है ही ऐसे या कोई ये जो बारिश या सैलाब आया था उसके बाद से ऐसे हैं? शुरू से ये तकरीबन 40 साल से यहाँ पे रैश पसीर हैं। इनका जो रेंट्स है ना तकरीबन इसी तरह का है, लेकिन कुछ जो घर हैं इनकी बारिशों के बाद जो है वो डैमेज हो चुकी है। ये जो पंखा रखा हुआ है, ये पंखा चलता भी है या बस रखा ही हुआ है? गुजारा करता है। चलता है? अभी चल सकते हैं? इसको चला के दिखा सकते हैं? ये जरा पंखा देखें एक दफा। बिजली पे चलाते हैं सर। बिजली पे चलाते हैं? जी हाँ, बिजली अभी नहीं है। बिजली अभी नहीं है? जी हाँ। ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ये बरकत के लिए रखी हुई है, ये वाकई चलती है? ये भी ये खराब है, ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, ये किसके लिए रखी हुई है? जी हाँ। ये सामान कपड़े वगैरह इसमें डाले में, यानी संदूक का काम इससे लिया जा रहा है। दो वॉशिंग मशीन है ना, एक और भी है, 3 है, लेकिन ये चलती नहीं है। ऐसे ही? जी नहीं, पुराने है, खराब है। पुरानी है, खराब है। जी हाँ। तो कपड़े कैसे धोते हैं आप लोग? हाथ पर। हाथ से कपड़े धोते हैं? जी हाँ। अब हाथ से कैसे धोते हैं ये तो मैंने तो नाज़रीन देखा हुआ है, हाथ से कैसे धोते हैं कपड़े। अब इसका प्रैक्टिकल करके आपको नहीं बता सकते। तो पानी कहाँ से लेकर आते हैं? पानी तालाब है, टैंकी लगा हुआ है सर, वाटर अच्छा। सप्लाई है। अच्छा, जी हाँ। तो वहां चले जाते हैं, जाके कपड़े धो के आ जाते हैं? जी हाँ। जब पानी वहां से यहाँ लेके आते हैं? और कभी कभार वहाँ से ले आके आते हैं, कभी कभार बिजली है, नहर भी है सर। अच्छा, नहर सामने नहर है। इन कैनों में पानी भर के लाते हैं? जी हाँ। ये जो मोटर है ये चलती भी है? ये जो मोटर है जी हाँ। चलती? जी हाँ। तो ये क्या कर रही है, पानी लेके आ रही है? जी हाँ। कहाँ, नहर से? नहीं सर, टैंकी है उधर तालाब से। अच्छा, टैंकी का पानी वहां से यहाँ आ रहा है? जी हाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप जरा देखें, और कैसे वक्त गुजर रहा है? बस गरीबी गुजर रहा है, जो गुजर रहा है शुक्र है। ये बात है, कैसे गुजर रहा है ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं, क्या है? शुक्र है। कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम, दे आफियत हमको दुनिया में भी, हो आखिरत में भी तेरा करम, दे आफियत हमको दुनिया में भी, हो आखिरत में भी तेरा करम, कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियां भी अता फरमाए, जी। और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें अता फरमा रखी हैं, अल्लाह हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और ये शुक्र का जज्बा अल्लाह हम सबको जो है वो अता फरमाए। आमीन। किचन कैसा, जरा किचन भी दिखाएं भैया। किचन कहाँ है किचन? किचन ये है सर। किधर? बस ये है। ये किचन है? जी हाँ। अल्लाह अकबर। तो क्या क्या पका लेते हैं आप लोग यहाँ पे? बस जो दाल रोटी है,
दाल रोटी यहाँ पका लेते हैं, जी हाँ। बर्तन भी देखें। जिंदगी अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। ये इस छत गिरा हुआ है यहाँ का, इस कमरे का जी हाँ। गिरा हुआ है? जी हाँ, कब गिरा था ये? सैलाब में, बरसातों में। शराब और बरसात में घर गिर गया था यहाँ, जी हाँ। कमरा गिर गया था। जी हाँ। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह आपको आफियत दे। छाल है, छाल है। दस है। Tawarakan, Sindiyam Tawarakan. खुश है, बड़ा खुश। खुश आए हो? छा हाल है तुझो? नालो छा है तुझो? रेहान। Ini me Aishiyam Buddha. छा नालो आए? रेयान रेहान। छा तो करे जो रेहान? रेहान? हाँ? तुझे पी नालो छा है? और रईस हाँ? मोहम्मद सिद्दीक मोहम्मद सिद्दीक। हाँ छा तो करे रहे हो? हाँ? छा तो करे रहे हो इतना? बैठा हूँ इतने घर अपन। हाय हाय हाय, बरकत दे, सलामती दे, आफियत दे। बच्चे से मैंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसने नाम बताया रेयान। फिर मैंने आपके कहा आपके अब्बू का नाम क्या है, फिर अपने अब्बू का नाम बताया। फिर मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मेरा घर है, मैं अपने घर में यहाँ बैठा हूँ। क्या बात। जिंदगी जिंदगी। ये मटका है आप देख रहे हैं, और मटके में पानी है, और ये ठंडो है, ठंडो है पानी, ठंडो है। हाँ? बच्चियां कह रही हैं मटके में पानी है लेकिन ये ठंडा नहीं है। ही पानी पीने चलाया है, पीने चलाया। ये पानी बच्चे पी रहे हैं बेचारे। जिंदगी जिंदगी बलूचिस्तान के रहने वालों ने बताया था कि यहाँ चूंकि बाज इलाकों में बिजली है ही नहीं, लिहाजा पंखा है जो गधे से चलता है। ये हमारे लिए एक नई बात थी, लिहाजा गधे से चलने वाला पंखा देखने के लिए हमने आगे बढ़ना शुरू किया। ये भी धान है, पानी नहीं बेचारी में। हाँ पानी जमा। इसका तो काम हो जाएगा। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। ये चलता कैसे? गदा बांधते हैं, हाँ? गदा बांधते हैं, उसकी आंख गदा बांध के दिखाते हैं, फिर वो पूरी रात चलता रहता है। ये देखें जी कैसे पंखा चलता है जरा। और हम बचपन में वो सुनते थे ना, ऊपर पंखा चलता है नीचे मुन्ना सोता है। सरदार साहब बचपन में एक नज़म थी, तो ये देखें जरा पंखा कैसे चलता है। जिंदगी जिंदगी तो बांध देते हैं उसको। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। ये तो दिलविश भाई, ये तो हवा क्या देता होगा? ये हवा नहीं देता ये, बस रात के टाइम जिस तरह यहाँ पे जैसे ही गर्मियाँ होती हैं या रात के टाइम आसपास में यहाँ पे गंदा पानी होता है तो मच्छरें होती हैं बहुत, तो उन मच्छरों के बचाव के हिसाब से थोड़ा बहुत यानी होता है। हवा मेरे ख्याल से उतना खास नहीं होते इसमें यानी। इधर आए भैया, इधर आए इधर। ये कितनी चारपाइयाँ आ जाती हैं इसके नीचे? इसके तकरीबन 5-6 चारपाई आ जाएगी। अच्छा जी जी, यानी एक फैमिली पूरी इधर पूरी आ जाती है? हाँ एक फैमिली पूरी आ जाती है जी। तो अगर गधा रात को रुक जाए तो? रुक जाए तो इसको हाँकना पड़ता है। सही है जी जी, यानी रुक जाए तो फिर आप इसको हाँकते हैं तो फिर दोबारा ये दोबारा स्टार्ट हो चल जाता है, पड़ता चल पड़ता है। तो सारी रात चलता रहता हाँ सारी रात। है। यानी जब गधा रुक जाएगा तो फिर नींद भी खुल जाएगी। हाँ फिर यहाँ मच्छर है, गर्मी है, इधर सोना इधर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी जी, तो फिर गधा कब सोता है? ये दिन को। अच्छा जी जी, दिन में सो जाता है। हाँ दिन में सोता है, और क्या है तो रात को काम आता है। हमारे मच्छर वगैरह, गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हवा तो नहीं लगती होगी आपको इससे? नहीं, हवा इसमें है ही ना। यानी ये सिर्फ निजाम बनाया हुआ है कि मक्खियां मच्छर जो है ना वो, हाँ वो मक्खियां तो नहीं, मच्छर उड़ता है। मच्छर, हाँ मच्छर नहीं आते हैं, बस मच्छर नहीं आते? नहीं आते हैं। हाँ
मसला मच्छरों का है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इसलिए नींद नहीं आती है रात को। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी एक जिंदगी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदगी जिंदगी। चले जी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, कम से कम चले, बिजली से ना सही, यूपीएस से ही सही, पंखा चल तो रहा है, या बिजली से, यूपीएस से, जैसे भी आप देखें पंखा हमारा चल रहा है, पंखे के नीचे सो रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह आप पर भी रहमत फरमाए, आप पर भी करम फरमाए। कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम। ये बारिश से गिरा होगा, हाँ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दे आफियत हमको या अल्लाह। दुनिया में भी, आखिरत में। सरदार साहब कैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। सलमान भाई, इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमारे पास भी नहीं है, तो अल्लाह पाक की अता से इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। ये अगर नहर का बहता हुआ पानी पी लें या कोई भी चीज़ करें ना तो इनको कुछ भी नहीं होता। हम अगर कभी ठंडा पानी ज़्यादा पी लें या कभी गर्म पी लें तो ज़ाहिर है कभी गला ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कुदरती अता है इनके ऊपर के, मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है। यानी एक चीज अगर कम है जी तो दूसरी तरफ अल्लाह करीम ने इनको नवाज भी रखा, नवाज रखा है, बिल्कुल। कुर्बान जाओ। जी। ये आप देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, कुछ ड्रॉ किया हुआ है बच्चों ने। ये पंजाबी में इसको कहते थे स्टापू, और यहाँ इस ज़बान में क्या कहते हैं इसको? सिंध में जो है और बलूचिस्तान में भी अक्सर जो खेलने वाले इसको रान को पेलदूज कहते हैं इसको। ये खाने बनाए जाते हैं चौकोर चौकोर, फिर इसमें बच्चे गिनती लिखकर खेलते हैं। सही है, तो ये हेल्दी एक्टिविटी है, सेहत के एतबार से भी देखें तो बच्चे जो है वो एक्टिव रहते हैं। और हमारे जामी भाई, आपको याद होगा हमारे यहाँ इसको स्टापू कहते हैं पंजाबी में, क्या कहते हैं? इधर आए ना जरा जामी भाई, इधर आए जरा। जामी भाई, स्टापू कहते हैं कि क्या कहते हैं? वैसे स्टापू ही बोलते हैं, और यहाँ पर कराची में और सिंध में वही जो पेलदुल बोल रहे थे। अच्छा, वैसे हमारे पंजाब में तो इसको स्टापू कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों की ये गेम है जी, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे थोड़ी यूं बोलें कि उछल कूद भी करते हैं, तो यूं उनका एक यूं बोलें कि एक्सरसाइज भी हो जाती है, और बड़ा इसका सिस्टम है इसको खेलने का। बचपन में जामी भाई हम भी स्टापू खेलते रहे। सलमान भाई, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसके अंदर ये मैंने देखा कि हमारे बलूचिस्तान में कि माशाल्लाह यहाँ के लोगों को दिल के अटैक बहुत कम होते हैं। सही। और सेहत माशाल्लाह अच्छी होती है, और इन लोगों की जो बिनाई है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज है। वाह। और ये समझ लें कि बगैर रात के अंधेरे में भी ये बंदे को पहचान लेते कि फला बंदा आ रहा है। अल्लाह अकबर, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। एक चीज मैंने मदनी चैनल के नाज़रीन सफर में मुशाहदा की है। अभी जैसे हम गाड़ी में थे, सफर कर रहे थे, कराची से आ रहे थे, तो लाइट गाड़ी में बंद थी, अंधेरा था, तो मैंने कुछ खाना था, नजर तो आ नहीं रहा था। अच्छा, मोबाइल की लाइट मैं जलाना नहीं चाह रहा था कि ये जलाऊंगा तो ये जो सो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो शॉपर था अपने हाथ से ना मैंने महसूस करना शुरू किया कि जो मुझे बिस्किट खाने हैं वो कौन से हैं। सरदार साहब, आप यकीन माने, यूसुफ भाई, दिलविश भाई, प्यारे भाई, नासिर भाई, मैंने अपने इन पोरों से ना जी वो बिस्किट पहचान भी लिया, उठा भी लिया, खा भी लिया। तो ये इससे ये चीज़ जो है वो सीखने को मिली कि देखें अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। नजर नहीं आ रहा क्या है, लेकिन सिर्फ क्या है, हाथ से छू कर ही क्या कर लिया, उसका अंदाजा नहीं कर लिया बल्कि क्या कर ली, पहचान कर लिया। आप देखिए हाजी नासिर ने जो लफ्ज बोला है कैसा शानदार लफ्ज बोला है कि सिर्फ छू कर ही क्या कर लिया, उसको पहचान कर लिया उसकी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये तजर्बा जिंदगी में पहली मरतबा हुआ है मुझे। ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, हाथ से किसी चीज की शनाख्त कर लेना, पहचान कर लेना, तो ये जो बिलखुसूस नाबीना होते हैं ना, उनको उनके पास ये सलाहियत बड़ी बोले कि इन्हेंसमेंट के साथ अल्लाह करीम ने उनको अता फरमा रखी होती है कि उनके पास जो है ना वो ये बड़ा फन होता है कि वो हाथ से
छू कर, यानी वो काम जो हमारा आंखें वो काम करती हैं, तो नाबीनाओं के हाथ वो काम जो है वो कर लेते हैं। तो आंख का काम क्या कर रहे हैं? हाथ कर रहे हैं। वाह वाह वाह, अल्लाह की रहमत के, उसकी कुदरत के, उसकी सआत के कुर्बान जाएं। सुभान अल्लाह, लिल्लाहिल हम्दु व शुक्र व लिरसूलिही लकल हम्दु या अल्लाह। मुझे याद आ रहा है हज़रत जो है वो यमलीखा जो थे, असहाबे कहफ के अंदर एक हज़रत थे, उनका नाम था यमलीखा। ये जब दकियानूस बादशाह से मिले ना जी, तो दकियानूस बादशाह ने कहा कि तुम्हें मेरी इबादत भी करनी पड़ेगी और हमारे झूठे खुदाओं के नाम पर तुम्हें जो है वो भेंट भी चढ़ानी पड़ेगी और ये काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें जो है वो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मर्द मारना ही है तुम्हें। तो उन्होंने कहा बादशाह से, यूसुफ भाई, दिलविश भाई, उन्होंने कहा इन्ना लना इलाहन, ऐ बादशाह हमारा एक खुदा है, ऐ बादशाह हमारा एक खुदा है। अज़मतुहु मिल उस समावाति वल अर्द, और उसकी अजमत से जमीन और आसमान भरे हुए हैं। तो अल्लाह की अजमत के क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। जिंदगी जिंदगी। गोट हाजी अल्लाह डीनों का विजिट करने के बाद हमें मालूम हुआ कि कुछ लोगों का तर्ज जिंदगी ये है कि वो सिर्फ एक खानदान की सूरत में रहते हैं, 2 या 3 कमरे होते हैं और यही उनकी कुल कायनात होती है। लिहाजा ये देखने के लिए हमने अगली मंजिल की जानिब सफ़र शुरू किया। मतलूबा मकाम पर पहुंचे, ज़मीन अपने बंजरपन का हाल बता रही थी, जिसे देखकर गोठ वालों की मुआशी सूरत हाल का अंदाजा हो रहा था। हमने देखा कि बच्चे अपने कंधे पर पानी उठाकर ला रहे हैं। चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी में बच्चों का दूर से पानी उठाकर लाना, इस मंजर ने हम पर एक अजीब कैफियत तारिक की हुई थी। अगरचे ये उन बच्चों का रूटीन का काम था, लेकिन गर्मी में बच्चों का यूं कंधे पर पानी उठाकर लाना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। ओस्ता मोहम्मद से काफ़ी हम ट्रैवल करके यहाँ जो है ये पहुँचे हैं, एक आबादी है। और यहाँ मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि देहात की ज़िंदगी ये 2 तरह की है। एक है पसमानदा देहाती ज़िंदगी और एक है कुछ जिसे आप कह सकते हैं रीज़नेबल या एक मुनासिब सी देहाती ज़िंदगी। तो बलूचिस्तान में जो मुझे चीज़ देखने को मिली है अभी तक वो ये है कि जहाँ जहाँ जिन जिन गोठों में हम गए हैं तो ये काफ़ी पसमानदा जो है वो मामला है इसका। बहुत सारी डायमेंशन और जिहाद के साथ इस पर कलाम हो सकता है। अल्लाह हमें आफियत और सलामती अता फरमाए। ये कमरा क्या गिर गया यहाँ पे? ये लग रहा है जैसे ये गिर गया। ये कौन सी बरसात में गिरा? ये अभी ने सैलाब का बरसात 2022 में। जी जी हाँ, ये बहुत बने हुए थे, सारा लेटरिन है, देखो बोर्ची खाना सब बना हुआ था। हाँ, सब बने हुए थे और अभी गिर गया ऐसे। जिंदगी 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 जिंदगी। शरीफ भाई क्या क्या काम आप लोग करते हैं यहाँ पर? इतनी दूर आप रह रहे हैं, आप इतनी दूर क्यों रह रहे हैं? आपको चाहिए कि शहर के करीब रहे या कोई? इधर हमको सही है। यहाँ सही है? जी हाँ सर। क्यों सही है यहाँ पे? यहाँ हम दूर रहते हैं, भला है, मच्छर भी बहुत है। अल्लाह हाँ, मच्छर भी तो बहुत है। इसमें सही वाली क्या बात है इसमें? खेती बाड़ी करते हैं सर, शहर नहीं हमको मजा आता, बाराड़ी भला है। अच्छा जी हाँ। क्या काम क्या क्या करते हैं आप? इधर सारी होती है, सिरें होती है। सारी क्या होता है? सारी होती है? चावल चावल। अच्छा शाली। जी जी हाँ, शाली, ठीक है, चाली। सही है। गंदुम है, सही गंदुम भी होती है। यानी यहाँ पर जो फसल होगी, यानी आपकी बात से जो मैं समझाऊं वो ये है कि आप काश्तकारी करते हैं, आप जी जी फसलें वगैरह काश्त करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जी जी ऐसा ही है? जी हाँ। ठीक है। तो फसल यहाँ पर कौन कौन सी आपने बताया? एक तो शाली आपने बताया, ये जैसे चावल की फसल है, गंदुम है, गंदुम भी होती है। जी हाँ। सही। आपको क्या लगता है कि जिंदगी में तकलीफें ज्यादा हैं या आसानियां ज्यादा हैं? तकलीफें बहुत है। अच्छा, जी हाँ। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जी। अच्छा, आप ये बताएं कि शहर में रहने वाले ज्यादा तकलीफ में हैं या आपको लगता है कि आप ज्यादा तकलीफ में?
हम तो नहीं है, तो शहर वाले तकलीफ में होंगे, अल्लाह बाहर वाले नहीं ये है। तो उधर गर्मी है बहुत, इधर नहीं है, इधर ये मच्छर है बहुत। मच्छर है। जी हाँ मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जी। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जो है ना वो शहर में सुकून है और बाहर जो है ये सुकून नहीं है, जी हाँ। ठीक है, लेकिन आप शहर में जाके देखें तो शहर में भी सुकून, हमको बाराड़ी में सुकून है। आपको तो चले, आप तो नेक आदमी हैं माशाल्लाह, जी, आपका तो एक शुक्र वाला मिजाज है, आप तो जी। कह रहे हैं ठीक है हम यहाँ अल्लाह की रहमत है, ठीक है काम जी, चल रहा है, जी। अल्लाह का करम है। जी जी लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, जी। बाज लोग ये सोचते हैं यार हम यहाँ तकलीफ में हैं और जो फलां जगह पर हैं उनको तकलीफ नहीं, ये जिनके यहाँ लाइट आती है, आपको तो चले एक पता है ना कि लाइट है ही नहीं, नहीं लाइट नहीं, तो आपको पता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, गुजारा कैसे चलाना है अपना। बस जिनके यहाँ लाइट है ना उनके यहाँ भी कब कब होती है कब कब नहीं होती, जी जी ये भी एक दूसरी बात है। अच्छा फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, जी। आपके यहाँ तो जैसे खाना पकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, नहीं नहीं, लकड़ी जलानी है, खाना बस तैयार बन जाना है, तैयार हो जाना है। उधर शहर में तो क्या है, बिल गैस है, का सिस्टम है, गैस है, बिल तो है, गैस भी आएगी तो खाना पकेगा ना, बिजली ये भी तो है। साथ में बात है। पानी बहा का है, हाँ जी, इधर तो नहीं, हम बाराड़ी के, हमको इधर से नलका लगा हुआ है तो हम लेकर आएंगे, भर कर आएंगे। नलका वगैरह यहाँ लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, सही। तो पानी मीठा है उसका, मीठा मीठा है, मीठा पानी, अच्छा पानी है। जी हाँ ट्राई किया जा सकता है ये सब। जी जी हाँ ट्राई करें। हाँ? पानी के हवाले से वैसे अगर पानी ऊपर नीचे कर दे ना मामला, तो बस फिर हमारा बोतार बैठा है, हमको कोई परवाह नहीं। ये क्या होता है, बोतार क्या होता है? मतलब बड़ा जो होता है जमींदार है। अच्छा अच्छा जी जी हाँ। सही। अच्छा राधा लाइट क्या इस्तेमाल करेंगे? लाइट ही है भाई, क्या हाथ वाली शमशान लाइट वाली, अच्छा बत्ती नहीं है नहीं नहीं, बस नहीं। अच्छा रात को क्या करते हैं लाइट जब नहीं होती तो? नहीं होती तो सो जाते हैं सब, नहीं तो रात को मतलब लालटेन खाने- वगैरह कोई है? खाने के बाद पकाते हैं, फिर हम्म। हमको शमशी वाली लाइट है वो हम यानी चलाते आपने सोलर का सिस्टम रखा हुआ है हाँ, आपने, जी। तो बैटरी वगैरह रखी हुई है तो आप? बैटरी नहीं है, अच्छा नंदी बैटरी है तली ना, कुछ भी अच्छा। नहीं है, लाइट हाथ वाली चार्ज होती है और रात को जलती है। अच्छा शमशी वाली है वो। उनके पास है, सही सही वो सही बाजार से खरीद के आए हैं। हाँ सही। यानी इससे एक बात जो सीखने को मिली वो ये है कि मामला जो है ना वो जिद्दत की तरफ चले गए। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, गांव देहात के अंदर वो लालटेन एक होती थी जी और लालटेन जो है वो जलती थी, उसमें मिट्टी का तेल लगाते थे जी जी और फिर वो रात को जलती रहती थी। तो अब वो मामला जिद्दत इख्तियार कर गया, लालटेन की जगह ये लाइट आ गई है। सुबह ये चार्ज कर लेते हैं इसको शमसी तवानाई के ऊपर और फिर रात को वो नहीं जहाँ जरूरत हो तो फिर वो काम जी जी हाँ। आ जाती है। सही। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये कौन सी जुबान बोलते हैं? सिंधी शाह नाला है तुम जो इसको उधर दे, आशिक इधर आ। शाह नाला है तुम जो आशिक अलीबा हाँ? आशिक माशाअल्लाह। बाबा बाबा ये भी यहीं पर यहीं रहते हैं, आपके साथ ही रहते जी हैं? जी। स्कूल नहीं है, कहाँ पढ़े, सही। स्कूल नहीं है, हम आप पढ़े हैं, हम तो पढ़े नहीं है। तो आपकी वैसे महारत कौन कौन सी फसल काश्त करने में महारत है आपको? सारी सब्जियां वगैरह काश्त कर लेते हैं आप? नहीं, सब्जी नहीं होती। गुफ्तगू जारी थी। हम गोठ वालों के साथ बैठकर उनकी जिंदगी के अहवाल जान रहे थे कि इतने में हमारे मेजबान पानी के 2 गिलास लेकर के आए। मैंने एक नज़र पानी को देखा और दिल में सोचा कि अगर इस पानी ने तबीयत खराब कर दी तो मसला हो जाएगा, और अगर पानी ना पिया तो इनका दिल टूट जाएगा। बस खुदा खुदा करके 1-2 घूंट पानी पी लिया। ये किसका पानी है? बोर का नीचे बोरिंग का नल का लगा हुआ। FGRF का भी बोर 2-4 करवाएं यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पे है अगर ना? उनसे रब्ता करते हैं अभी इंशाल्लाह, इतना लग देना यहाँ पे जरूरी है ना, है ना? क्योंकि अभी ये भी देखना दूर से लेके आ रहे हैं, अगर यहाँ पे अपने गांव में हो तो और आसानी बेहतर है। रहेगी इनके लिए। सही। हाजी इतना जर लगल है, कितना ही नलका नहीं है। अच्छा जा रहे मीठा है, ना ना, ये मीठा नहीं, मीठा नहीं है ना बाऊ पे मत लगे, वो मठा मीठा कितना ही ये होगा? पर मत है, बारू वाटर वाटर दे मत लगे ले। वहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं? तो वहाँ पे नलका। नीचे पानी मीठा है, अगर नलका लग जाए तो ये जमीन के नीचे पानी मीठा कितने फुट गहरा पानी? वो कोई मारी है, 100 फुट गया है। 100 फुट। अलकासिब हबीबुल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और इत्मीनान में वो है कि जिसे अल्लाह इत्मीनान में रखे।
اللہ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے. چلنے جی. یوسف بھائی کوئی نا مجھے آگ جلانی ہے لکڑیوں کی. وہاں اس گاؤں میں چلتے ہیں وہاں پہ جلاتے ہیں. صحیح ہے نا. جی وہاں پہ جلاتے ہیں مغرب تک وہیں پہ رہتے ہیں. چائے بس ڈن ہو گیا. چائے ادھر ہی بنا آگ بھی بنائیں گے اس کو. زندگی 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 زندگی. یہ بل چوہے کا بل ہے یہ؟ جی ہاں. یہ سانپ کا ہے؟ ہاں؟ چوہے کا بل ہے. بل ویسے چوہا ہی بناتا ہے لیکن سانپ اس پر قبضہ کر لیتا ہے. یہ جو بل ہے اس کو سندھی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں یہ جو جگہ بنا ہوا ہے اس کو بل ہی کہتے ہیں. بل ہی کہتے ہیں. تو چوہا جو ہے یہ بل بناتا ہے اور سانپ اس پر قبضہ کر لیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ کسی کی پرائی چیز کے اوپر قبضہ کر لینا، اس کو ہتھیا لینا، یہ سانپوں کے کام ہے. یا سانپ فطرت لوگوں کے کام ہے، اچھے لوگوں کے کام نہیں ہے. زندگی 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 زندگی. وہاں کے رہائش پذیر لوگوں کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ ہی فاصلے کے اوپر ایک اور گوٹھ بھی ہے اور ان لوگوں کے پاس گائیں، بھینسیں، بکریاں وغیرہ بھی موجود ہیں. ہم ان لوگوں سے ملنے کے لیے مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے سفر کر رہے تھے کہ رستے میں ایک بوڑھے بابا جی کو دیکھا. وہ کیا کر رہے تھے اور اگلے گوٹھ میں کیا ہوا یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے. زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی. بس